आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, इसकी सजेशन हमें दी है हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है श्री कृष्णा's टॉप 3 लाइफ लेसन फ्रॉम भगवत गीता एंड महाभारत। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। When Draupadi was in danger because the Pandavas lost in dice and Yudhishthir had put Draupadi at stake after losing everything. So now Duryodhan, he asked Dushasan to call Draupadi. And Draupadi was pulled there into the assembly. However, at that time, she was being pulled, but she was fearless. My 5 husbands are here. What can he do to me? Now Dushasan said, all right, careful now. Draupadi looked at him, said, Gadadhari Bhim is going to come and break his head. And Bhimsen lowered his own head. And Draupadi looked at Arjun. Gandhivdhari Arjun will come and smash his teeth. Arjun also lowered his head. One by one, they all lowered their heads because they had lost in dice. Draupadi's faith got removed from them. They are no good. She started looking at the Dharmacharyas there. There was Bhishma, Vidur, Kripacharya, Dronacharya. They will help me. There also she became disappointed. He said, no good. And she took her own support. I can do something. She is considered one of the Panch Kanyas, one of the 5 maidens. Although she had 5 husbands, and yet she is considered a maiden. Internally, she was a maiden. So she had tremendous power. She caught the cheer in her mouth. But to a little extent, she started remembering Sri Krishna. Sri Krishna at that time was in Dwarka. He was having his meal with Rukmini, sitting face to face. He had one morsel in his mouth, the other morsel in his hand when Draupadi started remembering. Now Sri Krishna froze in that position. The morsel in the mouth did not go in. The morsel in the hand did not go to the mouth, and he is looking in front. Rukmini said, Maharaj, what kind of Leela is this? What do you mean? You are Leeladhari, but what Leela is this? Is there some stone in the food? No, Rukmini, this is a serious matter. There is a terrible calamity that has fallen on Draupadi. So Maharaj, please go and save her. How? My rule is Ananyas Chintayanto Mam. You have to surrender to me alone. Right now she is surrendered to herself. I will do something. What could Draupadi do? Dushasan had the strength of elephants. And if Draupadi had matching strength, the cloth did not have that much of strength. It would have torn. So when Dushasan pulled and the cheer jerked, Draupadi realized, I have no support except for the Lord. So the Dev Bal Ashray, Pad Bal Ashray, Swajan Bal Ashray, Swa Bal Ashray, Dhan Bal Ashray, all disappeared. And she lifted her hands, Govinda Dwarika Vasan. Now the Ambara avatar took place. Now the cloth is increasing and increasing and increasing. Dushasan is wondering, he's pulling and pulling and pulling, sweating. He's wondering that what is going on. But he was not able to humiliate Draupadi. He fell there, tired and unconscious. So that was the Ananya Bhakti of Draupadi. Later on, Draupadi accosted Sri Krishna privately. And she said, Sri Krishna, you knew I was in trouble.
Why did you take so long? Shri Krishna said, Draupadi, you called and I responded. Where is this taking so long? Maharaj, even after my calling, you delayed one moment, which was like an age to me. Because the situation was so precarious. If you had delayed one more moment, it would be too late. Why did you delay? Shri Krishna said, Draupadi, the mistake is yours. You know I am God. Yes, Maharaj. You know I am everywhere in this world. Of course you are. You know I am sitting in your heart. Of course, Maharaj. You called wrongly. You said, Govinda Dwarika Vasan, oh Shri Krishna in Dwarika, I'm in trouble out here. I was sitting inside your heart. And you said, Govinda Dwarika Vasan, so then I went running all the way to Dwarka and came back running from there. That created the moment's delay. God says, Ye yathavam prapadyante tastathaiva bhajamyam. As you surrender, I will reciprocate accordingly. If your faith is complete, then God is inside. He will not take even a moment to jump out and do the yogakshema. But if you think He's in Dwarka, then He has to come all the way from Dwarka. That is why God says that, look, if you want my complete and absolute grace, then you will have to surrender completely and absolutely to me. So this one condition is very important. This mind is difficult to control. You say, take the mind to God, but my mind goes to everything else. What should I do? It seems it's more difficult to control than the wind. This is Arjun speaking. He is the famous Gandivdhari Arjun, the wielder of the Gandiv bow. Arjun's mind was actually so controlled and focused that in the ashram of Dronacharya, Guruji once took a test. He lined up the 100 Kauravas and the 5 Pandavas and he said, there on the tree is a bird. Take aim on its eye. Now they all lifted their arrows, placed them on the bows and took aim. Guruji asked, Duryodhan, what are you seeing? Guruji, I am seeing the bird, I am seeing the tree, I am also seeing Bhimsen. Bhimsen, what are you seeing? Guruji, I am seeing the tree, the bird and its eye. Yudhishthir, what are you seeing? Guruji, the bird and its eye. Arjun, what are you seeing? Arjun says, I. That was his razor sharp focus. That Arjun is feeling nervous in the Bhagavad Gita. And he's saying, Sri Krishna, this mind seems more difficult to control than the wind. So, at least we can understand that mind is not just a matchbox, you'll burn it and throw it away. It will require effort. It will not happen automatically. In response to Arjun's question, Sri Krishna answers, Asanshayam mat mahabaho mano durnigraham chalam. Arjun, what you are saying is undoubtedly correct. He did not dismiss Arjun. Hey Arjun, kya bak bak karta? He says, Asanshayam, you are right. The mind is durnigraham. It is difficult to control, not impossible. It is difficult. But then so many things are difficult in this world. You people studied all the way to graduation, post-graduation. Was it easy?
You worked hard, you endeavored. You raised a family. Is that easy? Raising children? My God, when I see you all struggling with your children, I say, wow, I'm happy to be free of all this. Now take them to Kumon class, and now take them to chess class, and now take them to basketball. And what a struggle to raise children, and you all do it. So you have done so many difficult things in the world. The amount of effort and endeavor you put in the material side, for material gain, if you could put that much in the spiritual side, we would forever be free of the cycle of life and death. It's difficult, so what? I will still endeavor. And how to endeavor? Sri Krishna says, Abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate. Arjun, with practice and with detachment, you will gain success. When Karna in the Mahabharata, his chariot wheel got stuck in the ground, Lord Krishna told Arjun, look, here's your chance. Right now his back is towards you. When his chest is towards you, you will not be able to shoot him. So hit him in the back. Karna heard Lord Krishna. He had been born through the ear, so his ears were very powerful. His name is Karna. He said, Sri Krishna, you are God. You have manifested the laws of dharma in the Vedas. And you are teaching Arjun adharma? What kind of God are you? So Karna said, Kshatra dharma mavekshasva. Oh Sri Krishna, what is the dharma of Kshatriyas? Think. See, in the Vedas, even for fighting a war, there are codes of conduct. Do not shoot anybody after sunset in the dark. Do not hit under the belt or in the back. Don't lift your hand on ladies. This is just warfare. So Karna is reminding Sri Krishna about the rules of dharma. Lord Krishna replied, Karna, you love dharma? Where was your dharma when the right of the Pandavas was being denied to them? What happened to your dharma when Draupadi was being humiliated? If you loved dharma, why are you fighting on behalf of the adharmic Kauravas? Lord Krishna said, Oh Karna, what dharma did you follow in the past? What I am trying to show is that we may do wrong, but we want others to do right to us. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो सबसे पहले तो मैं एक स्टार्टिंग वाले फेज की बात करना चाहूँगा, जहाँ पे उन्होंने जो कहा कि भगवान आपके अंदर है। तो नो डाउट आप जब क्या नाम लेते हैं ऊपर वाले से कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो आप जो है उसे इस तरह मांगें कि आप यही फील करें कि वो आपके बिल्कुल पास हैं। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो है ना, जब दुआ मांगते हैं ना, तो हम यही कहते हैं, यानी कि हम इस तरह करते हैं कि वो हमसे बहुत दूर हैं, पता नहीं हमें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में है। हो सकता है, बट वैसे मेरे जहन में तो कभी ये बात नहीं आई कि वो मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, मुझे तो यही लगता है कि मैंने जो मांगा है चाहे देर से सही मिल जाता है। और आपको खुश रहना चाहिए अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर, और जो नहीं हैं उन पर भी खुश रहना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी वजह से वो शायद आपके लिए सही नहीं है। बट जो द्रौपदी वाला एक सीन था, हाँ, उस पे मैं ये बात कहूंगी कि जो मुझे एक चीज समझ आई, और वो ये कि आपका यकीन कितना होता है ऊपर। यानी कि जब हम मांगते भी हैं तो कितने यकीन से मांगते हैं, या अगर हम कुछ भी हेल्प या मतलब हम इंसान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी एक शिद्दत से मांग रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि रोज ही कहूंगी कि वो मांगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनकी वो साथ में ये भी शिकवा करेंगे कि मेरी सुनता नहीं है ऊपर वाला, या मेरी चीजें पूरी नहीं होती। तो आई थिंक
थिंक आपके और उन लोगों के ना बीच में एक थिन लेयर होती है, उसी का एक फर्क होता है कि आपका यकीन कितना ज्यादा होता है। हो सकता है कि मैं इस चीज की इंटरप्रिटेशन कुछ और तरह से ले पा रही हूँ, जो गुरुजी ने बताया है उस तरीके से ना समझ पा रही हूँ, बट ये कि द्रौपदी जी वाले सीन से जो टीचिंग्स उस टाइम पर दी गई हैं, मतलब भगवत गीता को लेकर और हमारी पर्सनल लाइफ और आजकल की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन चीजों को आज की वीडियो में जो डिस्कस किया गया है, तो वो मुझे बड़ा मतलब खूबसूरत एक मैसेज। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा धर्म और धर्म की, जिस तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया, और वाकई अगर आज के टाइम में देखें ना, इसी तरह होता है कि हर बंदा से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बिल्कुल सही करेंगे, अगला बंदा जो है वो जो मर्जी करता रहे, आप उससे उसकी वो बातें याद नहीं दिलाएंगे। लेकिन नो डाउट ऐसा नहीं होता, आप जिस तरह होते हैं आपको आगे से भी फिर उसी तरह का ही रिस्पॉन्स मिलता है मोस्टली। बट पता है मैं इस चीज को बड़े अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ आज के टाइम से, यानी कि देखो जैसे जो करण है वो कृष्णा जी को बोलते हैं कि वेदास में इस तरीके से धर्म के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और आप उसी के मतलब अब उल्ट मतलब जो है वो बता रहे हैं और करने को बोल रहे हैं। तो मैं आज के टाइम को अगर लेकर दूं, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो में ये बात बोली थी कि हमारे यहाँ पर ना रिलीजन को लेकर इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो कन्वीनियंस रहती है अपने लिए हम वो तो चूज कर लेते हैं और हम उसको फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन जहां पर हमारी कन्वीनियंस नहीं है वहां पर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे और फिर दूसरों को बट हम यही कहेंगे तुमने ऐसे करना है, तुमने ऐसे नहीं करना, तो खुद हम उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते कभी भी। तो मुझे ये चीज ना बड़ी वो एक मैं कहूँगी कि आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग लग रही थी। और दूसरा वाकई में अगर डेली रूटीन की भी अगर हम बात करें तो हम लोग दूसरों को बड़ी जल्दी नसीहत कर देते हैं, हालांकि हम खुद चाहे उस चीज को फॉलो करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, बट ये कि दूसरों के सामने क्योंकि हमें अच्छा बनना है तो हम कहेंगे भाई नहीं ऐसी नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। तो मुझे जैसे आज की वीडियो देखी है और जिस तरीके से मतलब उन्होंने एक एग्जांपल्स दी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, क्योंकि वाकई में जैसे कि हम लोग कमेंट सेक्शन में भी पढ़ते हैं और जहां तक हम लोग देखते भी आते हैं, तो महाभारत में वो सब चीजें हैं जो कि हमें आज की दुनिया में हमें नजर आती हैं कि हो रही हैं। बिल्कुल, और खाली ये नहीं कि एक चीज की बात करें, जितनी भी अगर चीजें देखें तो वो सब डिफरेंट सिचुएशंस को देखें तो वो आपको जो है आज की दुनिया में कहीं ना कहीं नजर आएंगी। आप जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, वो पहले वक्तों में लोग क्या करते थे, यार हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ पता नहीं बुरा क्यों हो गया। समहाउ हमें ये भी नहीं पता था कि भाई हम किसी से बुरा कर भी गए हैं कि नहीं कर गए, हमें खुद रियलाइज नहीं था, क्योंकि हम अपने मुताबिक उस टाइम सही होते हैं। लेकिन इन केस अगर किसी ने वाकई नहीं किया होता तो अब वो टाइम चल रहा है कि आप करें ना करें, अगला बंदा जो है ना वो करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल, और माइंड को कंट्रोल करना और फोकस रहना सीरियसली ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं इतने सालों से अपनी ये रूटीन बना रही हूँ कि मैं उठकर डेली वर्कआउट करूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब जिस तरीके से मैं एक अपनी हैबिट बनाना चाहती हूँ वो चीज नहीं हो पाती, बीच में मैं छोड़ देती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन एक पॉजिटिव साइड जो मुझे नजर आती है वो ये कि मैं पहले से थोड़ी डिसिप्लिन्ड हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों का असर रहता है। माइंड को कंट्रोल करना मुझे लगता है कि क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं हम कहेंगे कि हम मटेरियल चीजों के पीछे ज्यादा एफर्ट करते हैं कि हम लोगों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमें ये भी करना है, बट एक एक अपने आप को टाइम देना और अपने लिए करना, हम लोग दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा पड़ गए हुए हैं, ऐसी चीजें जिनको हम कहेंगे मोह माया में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म आप में कब आता है, जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते, जब आप यहाँ से शांत होते हो, आपकी अपनी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, तब आप में स्पिरिचुअलिज्म आना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि नो डाउट आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन हम आज की दुनिया में बात करें ना, आज की दुनिया इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है कि वो आपको आपके पहनावे से, जो आपके हाथ में मटेरियल है, आपको उससे जज करेंगे कि ये यार ये बंदा इस लेवल का है कि हम इससे बात करें या ना करें, इससे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आपकी जो आपके पास चीजें होती है ना, वो उनसे आपको जज करती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो, बट पता है मैं अभी के टाइम पे आकर देखूं, मुझे ऐसा लगता है जो कि विद टाइम मैं अपने में चेंज देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है
सबसे बड़ा जो आपके पास अगर कोई, मैं कहूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे बड़ी मतलब नेमत बोल लें कि कुछ है, वो आपके पास नॉलेज है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। अगर मैं जैसे यहाँ पर गुरु गोपाल दास जी की बात करना चाहती हूँ कि जब मैं उनको सुनती हूँ या उनकी बातें, या फिर जब मैं बात करें हम लोग सदगुरु को सुनती हूँ, तो देखो अगर उनके अटायर की बात करें तो वो बहुत सिंपल सा अटायर है, उनका लाइफस्टाइल बहुत जिंदगी का सुकून इसी में है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बात करने का तरीका है, बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करता है और उनकी अटेंशन ग्रैब करता है। तो मुझे लगता है कि नो डाउट टाइम डिफिकल्ट जरूर रहता है और हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस चीज को अटेन कर सके, क्योंकि हम लोग इतना इन चक्कर में पड़ गए हैं ना कि मतलब एक स्टेटस, एक पोजीशन होनी चाहिए, एक आपका जो पहनावा है दूसरों के साथ, एक कंपटीशन रहना, इन चीजों में इतना पड़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि आपको इस साइड पर आने के लिए अपने आप को लिटरली ड्रैग करना पड़ता है, अपने माइंड को, अपने सोल को, क्योंकि आप इस चीज के यूज टू नहीं हुए होते। और वो चीजें, मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ होकर रहना चाहिए या आपको नई चीजों के बारे में नहीं पता होना चाहिए या आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। आपको दुनिया की हर चीज नॉलेज लेनी चाहिए और उसके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। बट उसके अलावा जो एक होता है ना कि मटीरियलिस्टिक होना, कि लाइक बहुत ज्यादा शो शाह में पड़ जाना, जो कि हमारे आजकल का एक मैं कहूँगी ट्रेंड है हमारे यहाँ पर, उन चीजों से मुझे लगता है कि थोड़ा किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोगों में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वेल ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी। मौजम कुछ और बोलना चाहेंगे? मैं क्या पूछ लेती हूँ, लेकिन ये कि मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देखकर। और हम लोग जितने भी ऐसे डिफरेंट गुरु को सुनते हैं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप ना बहुत अच्छा उनसे मैसेज लेते हो और सीखते हो। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो गुड बाय।